السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ بس محض 1 2 3 دن باقی ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے فضائل مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرے، رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کیسے کرے، انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے چند گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ تو ہم سب کو عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرما۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رمضان یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے رمضا۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو جلانا اور خاکستر کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں روزے کا کیا معنی۔ روزے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے صوم، جس کی جمع ہے صیام۔ اس کا معنی ہے الامساک، یعنی رک جانا، کسی چیز سے مطلقاً رک جانا، جیسے کھانے پینے سے رک جانا، گالی گلوچ سے رک جانا، چلتے چلتے رک جانا، چوری سے رک جانا۔ تو مطلقاً کسی چیز سے رک جانے کا نام ہے صوم۔ عرب کے اندر جب کبھی کوئی گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا تھا تو کہا جاتا تھا فرس صائم، یعنی یہ گھوڑا رک گیا۔ اسی طریقے سے جب کبھی کوئی چھری چلتے چلتے رک جاتی تھی، یعنی اس کی دھار کند ہو جاتی تھی، اس کی دھار ختم ہو جاتی تھی، تو کہا جاتا تھا الصائم من السکاکین، یعنی چھری رک گئی، اب چھری سے کوئی چیز نہیں کٹ رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوم کا معنی رک جانا۔ صوم کا معنی اصطلاح شرع میں کیا ہے، یعنی شریعت کی اصطلاح میں صوم کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں الامساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروبها بنیت خالصۃ للہ عز وجل، یعنی سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے رک جانا، خالص اللہ کے لیے نیت کرتے ہوئے، خالص اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی نیت کرتے ہوئے۔ آئیے جو آغاز میں ہم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کا معنی ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ امت محمدیہ سے قبل پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے کسی نہ کسی شکل میں، جیسا کہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں 40 دن تک مسلسل روزے رکھے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت دانیال علیہ السلام 3 ہفتے کے مسلسل روزے رکھے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین، ان کے پیروکار، ان کے فالوورز بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہودیوں کا روزہ تو بڑا مشہور ہے، ہر ایک جانتا ہے، لیکن ان کا روزہ رسمی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یعنی ان کا روزہ کسی نہ کسی فائدے کے خاطر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کام بنانا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یا کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے کفارے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا روزہ پورے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانے کا نام ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے اندر تخفیف فرمائی اور کہا کہ آپ کو بھوکا رہنا ہے صبح سے لے کر کے شام تک، اس کے بعد رات کے اندر پھر آپ جو چاہے کھا پی سکتے ہیں، مجامعات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر تخفیف فرمائی، آسانی فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا امت محمدیہ پر بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل کیا بتائیں؟ ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اپنی ایک خاص عبادت کو فرض قرار دیا۔ وہ خاص عبادت ہے روزہ، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک ہے کلمہ توحید، دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ ہے حج، اور 5ویں نمبر پہ ہے روزہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک خاص عبادت روزے کو ماہ رمضان میں فرض قرار دیا، یہ رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا، یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔
यही वजह है कि जब कभी रमज़ान आने लगता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बशारतें सुनाने लग जाया करते थे, लोगों को मुबारकबादियाँ पेश करने लग जाया करते थे और कहते थे अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन, ऐ मेरे सहाबा तुम पर रमज़ान का महीना आया है जो बहुत बाबरकत महीना है, मुक़द्दस महीना है। फ़रदल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अलैकुम सियामहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर उस महीने के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। उग़लिक़त अबवाबुल जहीम, इस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, शयातीन को जंजीरों में बांध कर कैद खानों में डाल दिया जाता है। और जहन्नम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात बहुत सारे जहन्नमियों को आज़ाद करते हैं। ऐ मेरे सहाबा आओ और अल्लाह की इबादत करो और जहन्नम से अपने आप को आज़ाद कराओ। फिर उसके बाद फरमाते हैं वलिल्लाहि फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और इस महीने के अंदर एक रात है, और इस महीने के अंदर अल्लाह की एक रात है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो हज़ार महीनों की रात से बेहतर है। ये नहीं कहा कि हज़ार महीनों की रात के बराबर है, बल्कि ये कहा कि वो रात हज़ार महीनों की रात से भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कैलकुलेट करें, अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 80 साल से ज़ायद होते हैं। यानी अगर कोई वो रात पाले तो गोया कि उसने 80 साल की इबादत को पा लिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा इबादत को पा लिया। उसके बाद फरमाते हैं मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम कुल्ला, जो उस रात से महरूम हो गया गोया कि वो खैर और बरकत से महरूम हो गया। वो रात आती है रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, लिहाजा तुम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में वो रात पाने की कोशिश करें, जाग करके गुजारें। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल को रमज़ान के आखिरी आशरे में जगाया करते थे और इबादत करने की तरगीब देते थे, ताकीद फरमाते थे, ताकि वो रात किसी से मिस ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम शॉपिंग करते रहें और वो रात गुजर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मोबाइल में मशगूल रहें, मोबाइल में बिजी रहें और वो रात गुजर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोस्तों के साथ गपशप में मशगूल रहें और वो रात गुजर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम ख्वाब गफलत में सोते रहें और वो रात गुजर जाए। आए उस रात को पाने की कोशिश करें और शॉपिंग वगैरह जो भी है ये पहले ही कर लें। आइए हम देखते हैं रमज़ान के आने से पहले उसका इस्तकबाल कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए एक मेहमान है। जिस तरीके से अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनके लिए तैयारियां करते हैं। अगर उस मेहमान से आपके फ़वाइद वाबस्ता हों, अगर उस मेहमान से आपको कोई फ़ायदा हासिल होना है तो फिर उसके लिए और मज़ीद बढ़ चढ़ के तैयारी करते हैं। और जब वो मेहमान आ जाता है उनकी इस तरीके से खातिरदारी करते हैं, इस तरीके से उनकी खिदमत करते हैं कि कहीं उसे कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेहमान है जो हमारे लिए रहमतों को लाता है, बरकतों को लाता है, नेमतों को लाता है, रब ताला से बख्शिशों को और ख़ताओं की माफ़ी को लाता है। लिहाजा हम रमज़ानुल मुबारक के महीने को, जो कि हमारे लिए बड़ा मेहमान के तौर पर आ रहा है, हम उनका बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करें और बेहतरीन तरीके से उसके लिए तैयारी करें। आइए हम देखते हैं कि रमज़ान के आने से पहले उसकी तैयारी कैसे करें। आइए हम चंद नुक्तों पर गौर करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले उसकी तैयारी कैसे करें। नंबर 1, हम अपनी नीयत को खालिस कर लें, पाक साफ़ कर लें, अपने दिल को साफ़ कर लें। अगर हमारे दिल में किसी के ताल्लुक़ से नफ़रत है, बुग़्ज़ है, हसद है, इनाद है, जलन है तो उसे दूर करें। किसी के ताल्लुक़ से नाराज़गी है, गुस्सा है तो उनको माफ़ करें, क्योंकि ये दिलों की बदबूदार चीज़ है, दिलों की गंदगियाँ हैं। जिस तरीके से ज़ाहिरन अगर आप कहीं पर गंदगी देखते हैं तो उसकी बदबू से नहीं रह पाते हैं, वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं या फिर उस बदबू को वहाँ से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे दिलों के अंदर बदबू हो, गंदगी हो, और दिलों की गंदगी ये है किसी के ताल्लुक़ से नफ़रत रखना, किसी के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ रखना, किसी न किसी गुनाहों में मुलव्विस रहना, ये दिलों की गंदगी है। अगर हमारे दिल में किसी के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ है, हसद है तो इनको दूर करें। किसी के ताल्लुक़ से गुस्सा है, नाराज़गी है तो उनको माफ़ करें। अगर हम किसी बड़े गुनाह में मुलव्विस है तो हम उनसे बाज़ आ जाएँ, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अगर हम किसी हराम काम में मुलव्विस हैं तो उस हराम काम को छोड़ दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूरुर रहीम है, आपको बख्श देगा। नंबर 2, अपने वक्त को डिवाइड करें और वक्त का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप मालदार हैं और कमाने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर रमज़ान भर नहीं कमाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी इतने माल जमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतनी दौलत दे रखी है कि अगर आप रमज़ान भर नहीं कमाएंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि
تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہ کمائیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن عموماً اور اکثر لوگ مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، انہیں کمانا پڑتا ہے، لہٰذا آپ اپنے وقت کو ڈیوائڈ کر لیں، کچھ وقت کمانے کے لیے رکھیں، کچھ وقت تلاوت کے لیے رکھیں، کچھ وقت اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے لیے رکھیں اور تراویح کے لیے رکھیں، کچھ وقت تسبیحات کے لیے رکھیں، کچھ وقت اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کے لیے رکھیں۔ اس طریقے سے اپنے وقت کو ڈیوائڈ کریں، پلاننگ بنائیں، منصوبہ بندی کریں، روٹین اور شیڈول بنائیں اور اپنے شیڈول کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین انداز سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے رمضان کی ایک تیاری یہ ہے کہ جو بھی شاپنگ ہے، جو بھی ضروریات کے سامان ہیں، وہ سامان رمضان سے پہلے ہی خرید لیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں بار بار بازاروں کا چکر کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے، بار بار مارکیٹ جانے کی ضرورت نہ پڑے، رمضان سے پہلے ہی شاپنگ وغیرہ اور حاجات و ضروریات کے سامان خرید لیں۔ اسی طریقے سے رمضان سے پہلے بار بار اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، کیونکہ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ جس کو نصیب ہو گیا وہ خوش قسمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے گزشتہ رمضان بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ رمضان کا وقت گزارا، لیکن اس وقت وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمیں اگر رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، ہم اس کی قدر کر لیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ دو صحابی ایک ساتھ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کچھ سالوں کے اندر ایک کی وفات رمضان سے پہلے ہو جاتی ہے اور ایک کی وفات رمضان کے بعد ہوتی ہے۔ ایک صحابی خواب میں ان دونوں کو دیکھتے ہیں، جس کی وفات بعد میں ہوئی یعنی رمضان کے بعد ہوئی وہ شخص پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اور جس کی وفات پہلے ہوئی تھی رمضان سے پہلے وہ شخص بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ جب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس صحابی کو رمضان ملا، کیونکہ اس صحابی کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے اللہ کی عبادت کی، اپنے گناہوں کی بخشش کروائی، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا۔ اور جو شخص پہلے انتقال کیا تھا اس کا حساب ہوتا رہا، حساب ہوتا رہا، حساب ہوتا رہا، حساب و کتاب جب ختم ہوا اس کے بعد جنت میں داخل ہوا۔ تو اگر ہمیں رمضان کا مہینہ مل رہا ہے تو ہم خوش نصیب سمجھیں اپنے آپ کو اور بہترین انداز سے رمضان کے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے صحابہ، تابعین، تبا تابعین، اسلاف یہ رمضان سے 6 مہینہ پہلے ہی سے اللہ رب العزت سے رمضان پانے کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں تو ہم پر برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ تو ہم بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہا تو ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما اور اس میں عبادت کرتے ہوئے تجھے منا لیں، تجھے راضی کر لیں، تو تجھے خوش کر لیں، اس قسم کا فیصلہ فرما۔ محترم حاضرین، روزہ یہ 2 ہجری میں فرض ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے اس کے 18 مہینے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے 1 یا 2 مہینہ قبل تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کی چاہت ہوتی تھی، آپ کی خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ ہم کہ اللہ رب العزت بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، یہ آپ کی چاہت ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کے اندر ہی حکم نازل کر دیا، وحی نازل کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قبلہ اب خانہ کعبہ ہے، لہذا اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ تو یہ حکم مکہ سے مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16ویں مہینے میں نازل ہوا اور اس کے 2 مہینے کے بعد 18ویں مہینے میں روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے روزہ فرض کرنے کے بعد اپنے نبی سے کہلوایا کہ اے نبی کہہ دو کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے بندے کو اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ یدعو شہوتہ واکلہ وشرابہ من اجلی، کیونکہ میرا بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، لہٰذا میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے۔ جس طریقے سے جنگ کے میدان میں جنگجو کے پاس ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتا تھا، تلوار کے ذریعے سے سامنے والے پر حملہ کرتا تھا اور ڈھال کے ذریعے سے سامنے والے کی وار کو روکتا تھا، تو یہ روزہ میرے بندے کے لیے جہنم سے ڈھال ہے۔
यानी अगर जहन्नम कहे कि ये बंदा जहन्नम में आना है तो रोज़ा आड़ बन जाएगा और कहेगा कि नहीं या अल्लाह, ये बंदा रोज़ा रखता था, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ कि इसे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े की सिफारिश को कबूल करेगा और उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा और जहन्नम से बचा लेगा। अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। वलिस्साइमि फरहतान, फरहतुन हीना युफ्तिर व फरहतुन हीना यल्का रब्बहु। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी उस वक्त है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, यानी जब वो रोज़ा इफ्तार करता है उसकी प्यास बुझ जाती है और रगें तर हो जाती हैं और अजर सवाब हासिल हो जाता है, तो उस वक्त उसे एक खुशी मिलती है। और जब बंदा रब ताला से मुलाकात करेगा तो उस वक्त सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि एक मोमिन बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा महबूब है। एक जन्नती को सबसे ज़्यादा अजीज़ अल्लाह का देखना है। एक मोमिन बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कल क़यामत के दिन देख लेगा तो अपने सारे गमों को भूल जाएगा। और फिर ये भी कहा वला खलूफ़ुस्साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क, रोज़ा रखने की वजह से मेरे बंदे के मुंह के अंदर जो बदबू हो जाती है, ये बदबू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्क व अंबर की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। यानी रोज़ेदार की ये फजीलत है कि उसके मुंह की बदबू को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुश्क व अंबर की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी इबादतें हैं उन इबादतों में रोज़े की एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को अपनी तरफ मंसूब किया और कहा कि अस्सौमु ली, बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है। क्योंकि और दूसरी इबादतों में रियाकारी का इम्कान मौजूद होता है, दूसरों को दिखाने का इम्कान मौजूद होता है। जैसे कोई अगर लंबे लंबे सुजूद करे, लंबे लंबे रुकू करे, लंबा लंबा क़याम करे, तो हो सकता है कि उसके दिल में ये ख्याल आए कि मैं लंबा लंबा क़याम करूँ, लंबे लंबे रुकू और सुजूद करूँ ताकि लोग मुझे देखें और मुत्तकी व परहेज़गार समझे। तो हो सकता है कि नमाज के अंदर रिया व नमूद मौजूद हो, दिखलावा मौजूद हो। इसी तरीके से कोई ज़कात देता है, हो सकता है उसके अंदर भी ये रियाकारी मौजूद हो, दिखलावा मौजूद हो कि लोग मुझे फ़य्याज़ और सखी कहे, लोगों के अंदर मैं सखावत में मशहूर हो जाऊँ, लोग मुझे कहे कि ये बंदा बड़ा दानी है, बड़ा दान करता है, लोगों में सदका व खैरात करता है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से एक बंदा जब हज करता है तो हो सकता है कि उसके दिल में रिया आए, वो समझे कि लोग मुझे हाजी कहे, तो हाजी कहलवाने के लिए, लोगों के अंदर मशहूर होने के लिए वो हज करता है। यानी हज के अंदर भी रियाकारी मौजूद हो सकती है, लेकिन रोज़े के अंदर दिखलावा मौजूद नहीं होता है। जब बंदा वज़ू कर रहा होता है, हलक सूख कर कांटा हो जाता है, अगर उस वक्त 2-4-5 कतरे पानी अपने अंदर हलक से नीचे उतार ले, कोई देखने वाला नहीं है, कोई डांट डपट करने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन वो इसीलिए पानी को नहीं निगलता है क्योंकि वो जानता है अल्लाह देख रहा है। एक बंदा कमरे के अंदर होता है, कमरे के अंदर फ्रिज रखा हुआ होता है, पानी होता है, मशरूबात होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, खाने होते हैं, वो खा पी करके अपनी भूख व प्यास को बुझा सकता है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन महज इसीलिए नहीं खाता है, नहीं पीता है क्योंकि अल्लाह देख रहा होता है। उसे मालूम है कि अगर मैं खा पी लूँगा तो मेरा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। रोज़ेदार की एक फजीलत यह है कि कल क़यामत के दिन बाब रैयान से दाखिल होगा। वो ऐसा जन्नत का बाब है कि उस बाब से, उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ल बाब फ़लम यदख़ुल मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम, जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर रोज़ेदार के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। मोहतरम हाज़रीन, आखिर में चंद बातें कहकर के अपनी नशिस्त लेने की कोशिश करूँगा। हम रमज़ान के रोज़े तो रखते हैं, रमज़ान में 1 महीने तक पक्का सच्चा ईमानदार मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलना छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजर जाता है फिर वापस हम बुरे कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, हराम कामों में लग जाते हैं, कबीरा गुनाहों में लग जाते हैं, क्योंकि हमें रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल नहीं हुए, रमज़ान के असरात हमारी ज़िंदगी पर वारिद नहीं हुए। रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होने का मतलब है कि रमज़ान के बाद भी पूरा साल उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो जिस तरीके से रमज़ान में गुजारी, यानी चोरी से बाज रहे, गाली गलौज से बाज रहे, लड़ाई से बाज रहे, बेईमानी से बाज रहे, ख़यानत करने से बाज रहे, ईमानदारी और अमानत के साथ रहे, तो इसे कहते हैं रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होना। हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजर जाता है फिर हम वापस अपने नहज पे लौट जाते हैं, यानी फिर बुरे कामों में मुलव्विस हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। रमज़ान तो हम अच्छा गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजर जाता है फिर हम बुरे कामों में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहीह बुखारी के अंदर किताब उस-सौम में है, मन सौम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो बंदा रमज़ान का रोज़ा रखे ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है।
यानी रोज़ा रखने की बहुत सारी शर्तों में से इस हदीस पाक के अंदर 2 शर्तें बयान की गई है कि ईमान के साथ रोज़ा रखें, यानी ईमान के अंदर पहली चीज़ है तौहीद, हम तौहीद के दायरे में रहें। अगर हम तौहीद के दायरे में हैं तो हमारा अमल महफूज है, अगर हम तौहीद के दायरे से निकल गए तो फिर गोया कि हम शैतान के बहकावे में आ गए, हमारा अमल अब महफूज नहीं रह पाएगा, अब शैतान हमें गुमराह कर लेगा। तौहीद इसीलिए हम तौहीद को अपनाएं, यानी सिर्फ़ एक अल्लाह की खातिर रोज़ा रखें, सिर्फ़ एक अल्लाह से मांगे जो कुछ भी मांगे, और शिर्क से बचते रहें। दूसरे नंबर पे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, ये हदीस भी बुखारी के अंदर आई है, किताब उस्सौम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तअमहु व शराबह, यानी जो बंदा रोज़ा रखता है और रोज़े की हालत में वो झूठ बोलता है, रोज़े की हालत में बुरा अमल करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके रोज़े की ज़रूरत नहीं है, यानी उसका रोज़ा कबूल नहीं होता है। तो अगर हम रमज़ान के महीने में भी झूठ बोलें, लड़ाई करें, लड़ाई से बाज ना आए, एक दूसरे के ताल्लुक से गलत फहमियाँ पालें, एक दूसरे के ताल्लुक से अपने दिलों में, अपने जहन में बुरे ख्यालात लाएं, बदज़न के शिकार रहें, एक दूसरे के ताल्लुक से गलत सोचें, बुरा सोचें, तो यकीनन उस रोज़े का हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, उन रोज़ों के फ़ैज़ व बरक़ात और असरात हमें हासिल नहीं होंगे, और हमारी ज़िंदगी की इस्लाह कभी नहीं हो सकती, हमारे नफ्स का तज़किया व तस्फ़िया कभी नहीं हो सकता, हमारा दिल कभी पाक व साफ़ नहीं हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम कोशिश करें कि लड़ाई से बाज़ रहें, झूठ से बाज़ रहें, गाली गलौज से बाज़ रहें, ख़ियानत से बाज़ रहें, वगैरह वगैरह। रमज़ान में कोई रोज़ा रखे, साथ में झूठ भी बोले और बुरा अमल भी करे, उसकी मिसाल अंडे की सी है कि अगर कोई अंडा फूट कर नीचे गिर गया, ख़राब हो गया, तो वो अंडा भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इसी तरीके से कोई अंडा अंदर से ख़राब हो गया तो वो अंडा भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। जो अंडा फूट कर गिर गया वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। जो अंडा अंदर से ख़राब हो गया वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। लेकिन जो फूट कर गिर गया वो दिखता है कि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, और जो अंदर से ख़राब हो गया वो नहीं दिखता है कि इस्तेमाल के काबिल है या नहीं, मगर दोनों इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा तो ये तो ज़ाहिरन पता चलता है कि इसने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन अगर कोई रोज़ा रखते हुए भी झूठ बोलते रहे और लड़ाई करते रहे, गाली गलौज करते रहे, दूसरों के ताल्लुक से गलत फहमियाँ पालें, दूसरे के ताल्लुक से बदगुमानियाँ रखें, तो उस शख्स का भी रोज़ा कबूल नहीं है। जो शख्स ज़ाहिरन रोज़ा नहीं रखता उसका तो दिखता है कि उसने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन जो रोज़ा रखते हुए भी इन बुरी आदतों को ना छोड़े तो उसका भी रोज़ा कबूल नहीं है, अगरचे उसने रोज़ा रखा हो। मोहतरम हाज़रीन, ये था मुख्तसर रमज़ान के ताल्लुक़ से रमज़ान की कुछ फ़ज़ीलतें और रमज़ान की कुछ तैयारियाँ। हम आइंदा अपनी ख़िताबत पे इंशाअल्लाह कुछ और मज़ीद चीज़ों को बयान करने की कोशिश करेंगे जो रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल से मुतअल्लिक़ इंशाअल्लाह अज़ीज़। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि इलाहा तू हम सबको रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा, आमीन। और इस महीने के अंदर तू हमें इबादतों का एहतमाम करने की, तिलावतों का और तरावीह का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और इबादत करते हुए तुझे राज़ी करने और तेरी खुशनुदी हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।